Boys, in your planning of the narrative story, you will start with the setting, characters, and events. First of all, you will decide the plot. Plot is the backbone of the story, and many stories follow a similar pattern when the writer describes a problem. Problem is created, and then problem is resolved. There are three types of problems: a conflict between the two or more characters, that is, man versus man. And second problem may be man versus nature, that is, war or shipwreck. And third problem may be the problem with someone's own personality, that is, the man versus his inner self. So before beginning the story, you develop a plot line. After developing your plot line, you will decide after developing your plot line, you will have to decide setting and characters of your story. Setting is the time and place, when and where does the story take place, and then characters are the persons who are involved in the story. Who you will have to decide who are the main characters or who are the side characters, and what kind of characters these people are. अब ये सब डिसाइड करने के बाद, आफ्टर डिसाइडिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, then there is the problem that how you will start your opening paragraph of the story. For the opening of your story, you may start with the setting, you may start with the flashback technique, you may start your paragraph with a statement, with a question, with a dialogue, or with some actions. Always choose a unique opening paragraph, always impresses the examiner. You can choose a statement like, everyone thought Zainab was a quiet, mostly sort of girl. आपने एक अपने करेक्टर के बारे में स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है. देन यू कम टू योर सेटिंग्स. You can start with a question. For example, who would have believed that Zainab had it in her? You can start with the dialogue. This has been going on for too long. Zainab suddenly exploded. You can start with the action. For example, Zainab walked up to one of the bullies and looked him straight in the eye. So every time when you write a narrative, try to choose a unique style of opening paragraph. Never start your story with once upon a time. It's a so childish style of writing a narrative. Main the main issue at this point is that you will have to hook the reader in your very first paragraph. Point of view, this is your main must be your main attention point. Sample paragraphs that are explained here on the screen. I became what I am today at the age of 12 on a frigid overcast day in the winter of 1975. This is a statement. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, बी पैराग्राफ में, लाइंग इन बेड, स्वामी रियलाइज्ड विद अ शडर. अब यहाँ पे एक्शन से स्टार्ट हो रहा है. एक्शन कौन सा है? लाइंग इन बेड. स्वामी रियलाइज्ड विद अ शडर डेट इट वाज मंडे मॉर्निंग. उसके बाद आपने उस मॉर्निंग की डिस्क्रिप्शन दे देनी है. अब नेक्स्ट देखें, इट हैड ऑल बिगन विद अ टेलीग्राम, कम क्विक ब्रदर डेड, फ्यूनरल जुलाई 20. आपकी ये डायलॉग के साथ स्टार्ट हो रहा है. तो आपने डिफरेंट स्टार्टिंग पैराग्राफ चूज़ करना है. अब जब आप स्टार्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपने क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में अपना जो प्रॉब्लम और उसका रेजोल्यूशन जो है वो डिस्क्राइब करना है. एंड देन फाइनली द कंक्लूजन पैराग्राफ. व्हाट अबाउट द कंक्लूजन पैराग्राफ? योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ मस्ट बी शॉर्ट सो डैट इट रिमेन्स इन योर रीडर्स माइंड्स. उसमें आप कोई लेसन भी कंक्लूड कर सकते हैं. एंड दे हैव फिनिश्ड रीडिंग, आफ्टर दे हैव फिनिश्ड रीडिंग. आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए कि जब आप अपने लेसन को अपनी स्टोरी को फिनिश कर दें, कंप्लीट कर दें, तो वो आपके रीडर्स के माइंड में प्रॉपरली एम्बेडेड हो जाए, जो उनको कभी भूले ना. ये जो आप मॉरल लेसन इस स्टोरी से देना चाह रहे हो, उसकी एक डिस्क्रिप्शन आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ में मस्ट होनी चाहिए. अगर आप पूरी स्टोरी लिखते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी लिखते हैं, और आप कंक्लूजन नहीं उसकी लिखते, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़. आपके कंक्लूजन के 2 मार्क्स काउंट होते हैं लास्ट में स्टोरी के.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए, एज द बॉय रेज्ड हिज गन अली क्लोज्ड हिज आइज एंड बिगेन टू प्रे। आप समटाइम आपकी क्लोजिंग ऐसी भी हो सकती है कि आप रीडर को एक क्वेश्चन पे छोड़ दें कि इसके बाद अब फ्यूचर में क्या होगा, क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा। इट कैन बी इफेक्टिव टू एंड स्टोरीज बाय क्रिएटिंग अ सडन ट्विस्ट। सडन ट्विस्ट पे अगर आप अपनी स्टोरी को एंड करते हैं, डेट इज़ द गुड, कि आप उसका एक कंफ्यूजन क्लियर करने के बाद एक सडन ट्विस्ट उसमें डाल दें। और बाय लीविंग योर रीडर्स इन सस्पेंस, यानी फ्यूचर के लिए कि इसके बाद स्टोरी में क्या होगा, ये सस्पेंस क्रिएट कर दें किसी भी एक सेंटेंस से। जैसे इसमें है, एज द बॉय रेज्ड हिज गन अली क्लोज्ड हिज आइज एंड बिगेन टू प्रे। यानी आपकी प्रॉब्लम और उसकी रेजोल्यूशन सब कंप्लीट हो चुकी है और एंड पे आपने एक सस्पेंस पे स्टोरी को छोड़ दिया कि अब इसके बाद इस स्टोरी के, इस प्रॉब्लम के एंड होने के बाद नेक्स्ट क्या हुआ होगा। क्लियर बॉयज? Here are some example including paragraphs. For example, the first example is, as the dance came to an end, Aisha felt triumphant. She saw the judges' hands with pencils poised. She was confident they would award her the highest marks, 10 out of 10. The audience was silent. Aisha wanted with bated breath. Then her score flashed up on the scoreboard, 6. Surely it must be a mistake. आपने एक सस्पेंस में छोड़ दिया कि वो एक्सपेक्ट कर रही थी इतनी अपनी सारी एफर्ट्स के बाद 10 आउट ऑफ 10, बट शी स्कोर्ड 6। इसके बाद क्या हुआ होगा, इसका कंक्लूजन जो है वो रीडर पे छोड़ दें। अब ये रीडर अपने इमेजिनेशन में सोचता है कि इसके बाद क्या हुआ होगा स्टोरी में। मे बी इसमें अब ट्विस्ट जो है आपके प्लॉट में ये हो सकता है कि कोई कंपटीशन था, उस कंपटीशन में प्रॉब्लम आई, उसको विन किया, उसने अटेम्प्ट किया और कंपटीशन को उसने फाइनली एंड कर दिया, और उसके जब रिजल्ट्स आए हैं तो रिजल्ट्स पे आपने एक सस्पेंस में रीडर को छोड़ दिया। दिस इज the unique style of concluding your story. Narrative example is, Jim leaped across the track with Curtis in hot pursuit. As he glanced back over his shoulder, he saw that Curtis had tripped on a rail. He lay in a heap on the track. A train was only 15 feet away. Jim closed his eyes and held his breath. He heard the train pass. Then everything fell silent. How was this ending? हो गई हमारी, एंडिंग हो गई, हमारा प्लॉट हो गया, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हो गए, राइजिंग एक्शन हो गया और उसके बाद फॉलिंग एक्शन हो गया। ये सब कंप्लीट करने के बाद हमारी सेटिंग हो गई, हमारी करेक्टर्स हो गई। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने अपनी स्टोरी में ऐड करनी है, डेट इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच आपने उसमें कहीं ना कहीं ऐड करने हैं, सिमिलीज, मेटाफर्स और पर्सोनिफिकेशन। यू कैन ऐड द इमेजरी। सिमिलीज में आपने एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है विद द यूज़ ऑफ एज और लाइक, कि एज ब्यूटीफुल एज दिस थिंग, एज सॉफ्ट एज दिस। मेटाफर्स होते हैं जिसमें आप उसको एक किसी एक थिंग को यू assign the attributes of another thing. For example, the dew making a sea of dots on the blades on the grass. ड्यू ड्रॉप्स को आपने सी ऑफ डॉट्स कहा, आपने सी ऑफ डॉट की तरह नहीं कहा। एज ड्यू वॉज लुकिंग एज ब्यूटिफुल एज सी ऑफ डॉट्स, this will be simile. But if you say that you making a sea of dots, it will be a metaphor. Personification is to give the human characteristic to non-human things. For example, आप ग्रास को या लीव्स को डांसिंग इमेज दे। डांसिंग जो है वो ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ह्यूमन क्वालिटी। आप ह्यूमन क्वालिटी को एक ग्रास को अगर दे दें कि द ग्रास वॉज डांसिंग in the storm, this is personification. For example, the water shivering, shivering is a human attribute, shivering human करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन क्वालिटी को अगर हम एक नॉन ह्यूमन थिंग को एट्रीब्यूट वो देते हैं तो डेट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। वाटर वॉज शिवरिंग, ग्रास वॉज डांसिंग। क्लियर बॉयज, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन?
You must add these spices of similes, metaphors, and personification. These are the spices that make your story spicy. Spicy, of course. There is always a problem and resolution. How you will have to decide this problem and this resolution to maintain your readers' interest. You must make sure that the events in your story build up to a climax. आपकी स्टोरी में एक क्लाइमैक्स आना ज़रूरी है कि एक प्रॉब्लम आप लिखें, उस प्रॉब्लम का क्लाइमैक्स आए और फिर उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन लिखें. एक स्टोरी का ये प्लॉट की बेसिक नीड्स हैं. अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपके स्टोरी में इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता रीडर का. सम पॉसिबल वेज टू फाइंड द रेजोल्यूशन आर समथिंग हैपन्स टू चेंज द सिचुएशन. कि आप कुछ ऐसी सिचुएशन को डिस्कस करें दैट हैपन्स टू चेंज दिस सिचुएशन. टू द करेक्टर्स फाइंड देयर ओन सोल्यूशन, या करेक्टर्स अपने सोल्यूशन को खुद फाइंड आउट कर लें. या द सिचुएशन इज रिजॉल्व बाय द अपीयरेंस ऑफ ए न्यू करेक्टर. एक न्यू करेक्टर ऐड करें और वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे. और द करेक्टर डिसाइड्स टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एज दे कैन नॉट चेंज इट. This may be a realistic solution but does not generally make for an existing conclusion. Never write your stories in a hurry. Take 5 minutes to प्लान योर स्टोरी. अब इतना स्लो भी ना हो जाए कि आप 20 मिनट्स प्लानिंग करते रहें और जब 20 मिनट्स लिखने की बारी आए तो तब आपके पास टाइम शॉर्ट हो जाए. अपने टाइम को इतना, अपने माइंड को इतना क्विकली मैनेज करें. और ये आपका प्रैक्टिस से होगा. आप जितनी ज़्यादा स्टोरीज़ के प्लॉट क्रिएट करेंगे उतनी जल्दी आपको ये हैबिट डेवलप होगी. आपने करना क्या है, आप 4 to 5 टॉपिक्स लें. उन टॉपिक्स के सिर्फ आपने प्लॉट्स डेवलप करने हैं. आपने उसकी सेटिंग, करेक्टर, आपने मीनिंग है वो लिखनी है. देन यू विल बी एक्सपर्ट इन राइटिंग द प्लानिंग्स ऑफ द स्टोरीज in 5 minutes. Finally, to conclude, narrative writing is a task in which the narrative structure and climax serve to maintain the interest of the reader. What is the structure of your story? आपकी स्टोरी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेटिंग, एक्सपोजिशन और सेटिंग द सीन. देन देर इज़ द राइजिंग एक्शन, द क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड द रेजोल्यूशन ऑफ denouement. However, you may not always have the word to follow this, allowance or time to follow this exactly. यानी आपकी स्टोरी के स्ट्रक्चर में प्रॉपर सेटिंग, उसके राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स एंड फॉलिंग एक्शन एंड देन कंक्लूजन must be added. Don't write your story with once upon a time. You may start. There are different techniques to start your story. There may be a flashback technique, or you can start with the description of the main character. You can start with the action in the middle of the story. You can start with the narration. You can start with the shocking statement. You can start with the quotation or a proverb. You can start by setting of the scene, referring to the place and time, season and weather. There is also a range of ways to end a narrative. अब आपने स्टोरी को एंड कैसे करना है. You can conclude your story in an ironic comment in direct speech. आप ironic comment छोड़ सकते हैं, कोई unexpected twist दे सकते हैं. You can return to the beginning and you can choose the cliffhanger technique. Cliffhanger technique is कि आपने जहाँ से स्टोरी शुरू की थी आप वहीं पे स्टोरी एंड करें. फॉर एग्जांपल, आपने कोई वॉर, ह्यूमन वर्सेस वॉर की स्टोरी लिखी है. आपने स्टोरी स्टार्ट की कि अ मैन वाज ब्लीडिंग एंड थिंकिंग व्हाट विल हैपन विद हिम. उसके बाद आपने उसकी पूरी स्टोरी राइट करनी है. अपने सेटिंग, नैरेट, उसके करेक्टर्स, उसकी राइजिंग एक्शन, उसके साथ कैसे वॉर में क्या हुआ, कैसे एक्शन राइज हुआ, क्लाइमेक्स पे गया और फिर कैसे उसकी जो है वो ज़ख्मी हुआ. और इन सब को डिस्क्राइब करने के बाद आपने एंड बिल्कुल उसी सेंटेंस पे करना है जैसे आपने बिगनिंग पे किया था कि नो ही वॉज लाइंग ऑन द बैटल फील्ड एंड ही वॉज ब्लीडिंग एंड द सन वॉज शाइनिंग ऑन हिज हेड. वॉट एवर यू वॉन्ट राइट. किसी एक्सीडेंट की स्टोरी लिख रहे हैं उसमें भी ऐसे कर सकते हैं. आप किसी बर्थडे इवेंट की, बर्थडे पार्टी की स्टोरी लिख रहे हैं, यू कैन चूज द क्लिफ हैंगर टेक्निक देयर. Now, after the plannings, plot, setting, character and all these things, the most important thing is your grammar.
योर लैंग्वेज मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द टेंस में जंपिंग मत करें। आप एक सेंटेंस, आप मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि एक सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा, अगला पास में लिख दिया। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द स्टोरी, इट इज़ ऑलवेज मेंट कंसिस्टेंट ऑन योर टेंस एंड योर पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप हाफ स्टोरी जो है फर्स्ट पर्सन में लिख दें और हाफ स्टोरी जो है वो थर्ड पर्सन में लिख दें, आई से शुरू करें और शी पे ट्विस्ट कर जाएं। ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विद योर पर्सन, आई और ही, शी, इट और यू, first, second, or third. Your story may be in the first or third person. So, whatever person you choose, be consistent with it. You must know your ending before you start your essay. A narrative essay ends to have air of finality as it moves towards the climax. आपकी स्टोरी का एंडिंग भी आपने उसी प्लानिंग में डिसाइड करना है। जब आपने प्लानिंग करनी है अपनी स्टोरी की, तो उसी स्टोरी की प्लानिंग में आपने अपनी स्टोरी की एंडिंग करनी है। ट्राई टू यूज़ डायलॉग्स, इवन नैरेटिव्स नीड डिस्क्रिप्शन। नैरेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें डिस्क्रिप्शन बिल्कुल माइनस कर दें, उसमें डिस्क्रिप्शंस आर नेसेसरी। आपको अपने करेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन, प्लेसेस की डिस्क्रिप्शन और सराउंडिंग्स की डिस्क्रिप्शन या एक्शंस, इवेंट्स की डिस्क्रिप्शन के लिए प्रॉपर अपने सेंसेस यूज़ करने हैं। क्लियर? सेंस, उसमें सेंसेस आपकी आइज़, नोज़, एयर्स, टच, इन सब सेंसेस की इन्वॉल्वमेंट फील होनी चाहिए। ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स रादर देन राइटिंग अ ट्रेडिशनल स्टोरी। कोई ट्रेडिशनल स्टोरी, इट मीन्स कि कोई ट्रेडिशनल स्टोरी जो आप पहले नॉवेल्स में पढ़ चुके हैं या आप मूवीज़ में देख चुके हैं, उनको छोड़ के आप कुछ डिफरेंट ट्राई करें। ट्राई टू चूज़ योर रियल लाइफ स्टोरीज। Stories need a conclusion. So, where things are either resolved or left unresolved as a cliffhanger, you must not give the impression that you stopped writing because you ran out of the time, ink or ideas. आपकी स्टोरी का एंडिंग और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव योर स्टोरी एट सम क्वेश्चन, एट सम सस्पेंस. Always the readers prefer to know how a story ended, but you must leave the impression that you had not stopped the writing. आपने अपनी स्टोरी को एक सस्पेंस और एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ना है कि जो आपके रीडर को उससे आगे सोचने पे फोर्स करे। टॉपिक्स असाइन करूँगी, आपने उन 5 टॉपिक्स के लिए आपने ऐसे एक प्रॉपर स्टोरी प्लान बनाना है। आप उसको माइंड मैप की फॉर्म में बना लें। आपने उसका स्टोरी का प्लॉट क्या डिसाइड किया है, इवेंट्स क्या डिसाइड किए हैं, स्टोरी की बिगनिंग क्या डिसाइड की है, उसकी एंडिंग कंक्लूजन कैसे करनी है, करेक्टर्स कौन से हैं, आपने स्टोरी का नेम क्या चूज़ किया है, राइजिंग एक्शन क्या होगा, फॉलिंग एक्शन क्या होगा, ये सारी प्लानिंग करनी है आपने। मैं आपको 4 to 5 जो है वो टॉपिक्स असाइन कर दूंगी। आपने उन 4 to 5 टॉपिक्स की क्विक प्लानिंग करनी है विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 5 to 10 मिनट्स। आपने एक स्टोरी की प्लानिंग के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट्स लेने हैं। ओके, क्लियर बॉयज? यस मैम। वेरी गुड।